জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। তো বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা বাংলাদেশ, সরি ওটা হবে এখন পূর্ব পাকিস্তান, কেননা একটা দেশ যদি দুবার স্বাধীনতা হতে পারে তাহলে কেননা সে দেশটা আগের নামে আসতে পারবে না। যাই হোক, পূর্ব পাকিস্তানের ঘরের ভিতরে যখন থেকে শেখ হাসিনার সরকার পড়ে যায়, শেখ হাসিনা যখন ভারতে পালিয়ে আসে, তারপরে থেকে সেই দেশের সংখ্যালঘুদের উপরে কিভাবে অত্যাচার হচ্ছে তার জলজান্ত ভিডিও ফুটেজ আপনারাও দেখেছেন আর এখনো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন। সেই দেশের সনাতন ধর্মী মানুষদের মেরে ফেলা হচ্ছে, সমস্ত সম্পত্তিকে লুটে নেওয়া হচ্ছে, সমস্ত মন্দিরগুলোকে, উপাসনালয়গুলোকে, সমস্ত কিছুকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, এমনকি তাদের রাতে গিয়ে থ্রেট দেওয়া হচ্ছে, হয় দেশ ছাড়ো, নয়তো ভারতে পালিয়ে যাও, নয়তো স্বেচ্ছাকৃতভাবে ইসলামকে প্রবল করো। ঠিক এমন টাইপেরই যে পরিস্থিতি সত্যি অনেক ভয়াবহ। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, এই মুহূর্তে সেই সমস্ত দেশের মিডিয়াগুলো এই ব্যাপারগুলোকে নিয়ে কখনোই কিন্তু খবর করছে না, না নিউজ করছে না। কারণ কি জানেন? আপনারা এটা ভালোভাবে তো বোঝেন যে একটি দেশের ইকোনমি যদি পড়ে যায়, সে দেশটা মায়ের ভোগে যেতে বেশি সময় লাগে না। বর্তমান সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের পথেই হাঁটছে, যেটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। প্রতিটা দানা দানার জন্য এখন সেই দেশের মানুষগুলো তাড়পাচ্ছে। তাই এমতো অবস্থায় সেই দেশের যে অন্তর্বর্তী সরকার এসেছে, তাদের সেখান থেকে আর তাদের যে মৌলানাগুলো মসজিদ থেকে ডিসকাস করে বলা হয়েছে যে এই মুহূর্তে আপনারা যে সমস্ত কাজকর্মগুলো করছেন আর আমাদের মিডিয়াগুলোকে সেই সমস্ত ভিডিও ফুটেজ আর সেই সমস্ত নিউজগুলোকে কভার একদমই করবেন না। কেননা এই মুহূর্তে এই সমস্ত খবরগুলো যদি ইন্টারন্যাশনাল বা গোটা বিশ্ব যদি ভাইরাল হয়ে যায়, ভাইরাল তো হয়েছে, বাট এখনকার আপডেটগুলো যদি চলে যায়, তাহলে আমাদের ওপর স্যাংশন থেকে শুরু করার বড় বড় প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে। আর এটা আপনারা জানেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ, সে হিসেবে ভারতের ক্ষমতা আজকের দিনে বিশ্বের কোন জায়গায়। তাই ভারত চাইলে এখানে অনেক কিছু সম্ভব। হ্যাঁ, তাই এই মুহূর্তে তারা কোনো রকম ভাবে সেই সমস্ত যে ইমেজগুলোকে নষ্ট করছে, সেই সমস্ত ইমেজগুলোকে রিকভার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের ওপরে, সনাতনধর্মী ভাইদের উপরে অত্যাচার এখনো কমেনি। তারা সমস্ত জায়গায় প্রোটেস্ট করছে, যার জলজান্ত কিছু ভিডিও ফুটেজ আপনারা দেখেছেন। যেটা হোক, এর ওপরই আমাদের অলোকদা একটা ভিডিও বানিয়েছে, যে ভিডিওটা দেখলে আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। কারণ এই সমস্ত ভিডিও আমরা বানানো অনেক প্রবলেম আসছে, অনেক জায়গা থেকে সেগুলো রিমুভ করে দেওয়া হচ্ছে। তাই আমি চাই এই সমস্ত ভিডিওগুলো কারো ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সামনে নিয়ে আসি, কারণ এই সমস্ত ভিডিওগুলোতে কোনো প্রবলেম হয় না। যদি প্রবলেম হয়ে থাকে, কারণ এগুলো রিয়াকশন ভিডিও, তো তাই অতটা এফেক্ট পড়ে না। চলুন ভিডিওটা দেখে নিন। আর আপনি যদি সনাতন ধর্মী ব্যক্তি হয়ে থাকেন আর ভিডিওটিকে ভালো আসলে অবশ্যই একটি লাইক করুন আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব। चाहे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हो या फिर बांग्लादेश की आर्मी, देश में माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए किया गया उनका वादा और दावा केवल हवाई साबित हो रहा है और रोजाना देश के किसी न किसी कोने में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब तो बात यहां तक आ गई है कि हिंदुओं से सीधे प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि या तो प्रोटेक्शन मनी दो या फिर मारे जाओ या देश छोड़कर भाग जाओ। बांग्लादेश में रहना है तो प्रोटेक्शन मनी दो, नहीं तो घर बार जमीन जायदाद छोड़कर हिंदुस्तान भाग जाओ। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर खौफनाक है। यह खबर बता रही है कि बांग्लादेश में हिंदू किस तरह मौत के साए में जी रहे हैं, किस तरह उन्हें डराया जा रहा है, किस तरह उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह आप बीती एक बांग्लादेशी हिंदू लड़के की है जिसने स्टूडेंट वीजा पर भारत आकर महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की है। अब वो ढाका में काम करता है। उसके माँ बाप ढाका से करीब 250 किलोमीटर दूर चटगांव में रहते हैं। जिस जगह उसके माँ बाप रहते हैं वहां और भी हिंदू परिवार हैं। इस लड़के ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से उसके माँ बाप के पास लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। फोन पर सीधे सीधे कहा जाता है कि या तो प्रोटेक्शन मनी दो, नहीं तो बांग्लादेश छोड़ दो। इस बांग्लादेशी हिंदू लड़के ने बताया है कि चटगांव में अल्पसंख्यकों के घरों पर मार्क लगा दिए गए हैं। इन सभी लोगों को फोन कर धमकाया जा रहा है। उनसे 5 लाख टका की मांग की गई है। फोन पर कहा गया है कि या तो पैसे दे दो, नहीं तो बांग्लादेश छोड़ के भाग जाओ, और अगर नहीं जाओगे तो मार दिए जाओगे। ये बांग्लादेशी लड़का बहुत डरा हुआ है। उसने बताया कि बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में लगातार हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ घरों पर हमले कर रही है, लूटपाट कर रही है, यहां तक कि हिंदुओं को मारा भी जा रहा है। अब इस तरह के वसूली वाले फोन कॉल से बांग्लादेश के हिंदुओं में और ज्यादा डर बैठ गया है। जरा सोचिए किस डर, किस दहशत के माहौल में जी रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू। न दिन को चैन से बैठ पाते होंगे, न रात को सो पाते होंगे कि न जाने कब पागल वहशी कट्टरपंथियों की भीड़ उनके घर पर हमला कर देगी, उनके परिवार को मार डालेगी, उनके घर को आग लगा देगी। शुरुआत में लग रहा था कि आंदोलन और तख्ता पलट के 2-4 दिनों के बाद जो है वो हालात सुधर जाएंगे, आम लोगों का जीवन
पटरी पर लौट आएगा। लेकिन बांग्लादेश में तो स्थिति रोजाना खराब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। यह बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की खबर है। तारीख देख लीजिए, 15 अगस्त यानी कल की। बांग्लादेश के ठाकुरगांव में हिंदू परिवार के घर को जला डाला गया। गनीमत रही कि इस हमले में परिवार के लोग बाल बाल बच गए। इससे पहले पड़ोस के गांव में भी हिंदू घर को ठीक इसी तरह निशाना बनाया गया था। यानी हर जगह हिंदुओं के घर की पहचान की गई, उन पर निशान लगाया गया और उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के गाजीपुर में 13 अगस्त को भीड़ ने 2 लोगों को लुटेरा बताकर पीट पीट कर मार डाला। इनमें से एक का नाम सुजान सरकार था। मारे गए लोगों के पास से बंदूक, पिस्तौल, चाकू तो छोड़िए, एक डंडा तक नहीं मिला है। पुलिस भी इस मामले में ठीक ठीक कुछ बता नहीं रही है। तो क्या इसे टारगेट किलिंग नहीं माना जाना चाहिए? और ऐसा पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हिंदू परिवारों को फोन करके प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है। ठीक ऐसा ही कारोबारियों से भी के साथ भी किया जा रहा है, उनसे भी ऐसी ही वसूली की जा रही है। द डेली स्टार की यह खबर आज की ही है। खबर बता रही है कि बांग्लादेश में कारोबारियों से रंगदारी वसूली बढ़ गई है। कुछ इसके पीछे महंगाई को कारण बता रहे हैं, तो कुछ तख्ता पलट को। रंगपुर के एक फुटवेयर कंपनी के शोरूम मालिक से 5 लाख टका रंगदारी मांगी गई। धमकी दी गई कि अगर शोरूम चलाना है तो रंगदारी देनी होगी। जाहिर है हिंदू कारोबारियों को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश पोल्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुमन हवलदार ने बताया है कि वसूली करने वाले बदमाशों के साथ साथ पुलिस को भी रिश्वत देनी पड़ रही है। यानी बांग्लादेश में कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे वो गांव में रहने वाला हिंदू हो या फिर शहर में रहने वाला हिंदू या फिर कोई कारोबारी हो। और ये तब हो रहा है जब बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर और उनके मंत्रियों ने देश में माइनॉरिटी की सुरक्षा को लेकर कई बार बयान दिए हैं। बांग्लादेश के एंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस 13 अगस्त को ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर गए थे। उन्होंने वहां हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी, उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इससे पहले भी मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार के पद के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद कहा था कि अगर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो वो पद छोड़ देंगे। तो क्या डॉक्टर यूनुस का ढाकेश्वरी मंदिर जाना केवल एक फोटो ऑप था? क्या हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उनका बयान केवल लफाजी था, केवल वर्ल्ड मीडिया के लिए किया गया दिखावा था? अगर नहीं तो फिर बांग्लादेश में अब तक हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा कैसे जारी है? 14 अगस्त को ह्यूमन राइट्स की संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को फौरन हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। अमेरिकी मीडिया एबीसी न्यूज की खबर 13 अगस्त की है। रिपोर्ट बता रही है कि शेख हसीना के हटने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का मुद्दा, उनके घरों और मंदिरों पर हमले का मुद्दा ऑस्ट्रेलिया की संसद तक में उठ चुका है। ऑस्ट्रेलियन एमपी जूलियन लीजर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर पार्लियामेंट में सवाल उठाए और उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। Bangladeshi Hindus are being subjected to increasingly violent persecution. The rule of law and the maintenance of social order in parts of Bangladesh is breaking down. Hindu neighbourhoods have been targeted, with households, temples and workplaces being attacked by large violent mobs. Families have had to flee their homes amid beatings. Looting and arson attacks are rife, with reports that Hindus have been killed in these attacks. The plight of Bangladeshi Hindus cannot be ignored. I call on the government of Bangladesh to uphold the principles of democracy and the rule of law, to ensure the safety and security of all its citizens, whatever their religion or whatever their political affiliation may be. Deputy Speaker, the world is watching. सवाल तो यूएन से लेकर ह्यूमन राइट वॉच और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ने उठाए हैं, लेकिन इसका बांग्लादेश के हालात पर कुछ असर होता नहीं दिख रहा है। और तो और वहां की स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज नाम के एक्स अकाउंट पर दावा किया गया है कि बांग्लादेश में अब सरकारी विभागों में काम करने वाले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इस ट्वीट में कुछ पेपर्स की तस्वीरें भी ट्वीट की गई हैं। दावा किया जा रहा है कि हिंदू कर्मचारियों को उनके पहनावे और बर्ताव के आधार पर नौकरी से निकाला जा रहा है। साफ है ये केवल टारगेट करने का बहाना है। तो सवाल उठता है कि अगर बांग्लादेश और हिंदुओं पर हमले ऐसे ही जारी रहे तो भारत क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा? बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत क्या कोई कदम नहीं उठाएगा?
साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौजियों और रजाकारों ने वहां के बंगाली हिंदुओं और आजादी समर्थक मुसलमानों पर इसी तरह जुल्म ढाए थे। लाखों लाख लोगों को मार डाला गया था, लाखों लाख औरतों के साथ बदसलूकी की गई थी। आज एक बार फिर हालात उसी तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कट्टरपंथी बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बना रहे हैं, जहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो 15 अगस्त को ही लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक का मुद्दा उठाया है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और इस बयान का असर देखिए कि आज ही बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर बात भी कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि मोहम्मद यूनुस ने उन्हें बांग्लादेश के मौजूदा हालात की जानकारी दी। इसके साथ ही वहां शांति और सुरक्षित माहौल बनाने और लोकतंत्र की बहाली के लिए मदद भी मांगी। मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा दिलाया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और ये तब हुआ जब प्रधानमंत्री ने केवल बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई थी। तो बांग्लादेश को चलाने वालों को भी मालूम है कि अगर हालात पर जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया और ये जो कट्टरपंथी लोग जो ये सब कर रहे हैं उनको अगर काबू में नहीं किया गया तो भारत भी कोई बड़ा स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। 1971 में जब भारत ने ऐसे ही मजबूर होकर कदम उठाया था तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। अब इस बार अगर कुछ वैसा ही होता है तो ये भी बांग्लादेश के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये सच्चाई पहुँचे, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाया जा सके। साथ ही एक प्रार्थना है कि भाई जो जिन लोगों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते और आपको यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी वाला वीडियो ही मिलेगा। कोई हवाई बात नहीं, कोई लफाजी वाली बात नहीं, हर बात सबूतों के साथ।